السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل تیرے بن اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل تیرے بن کا سیکنڈ لاسٹ پرومو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اس پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ میرب کو رقیہ سمجھاتی ہے کہ اب تمہیں تمہارے شوہر کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم مسم کو اکیلے نہیں پال پاؤ گی۔ مسم کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم وقت پر اسے ہاسپٹل لے گئی۔ مجھے تو سوچ کر بھی ڈر لگ جاتا ہے کہ اگر تم وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ بس اب تم مرسم کے پاس واپس جا رہی ہو۔ پھر صبا کہتی ہے کہ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب تمہیں مرسم کے پاس واپس چلے جانا چاہیے، یہی تمہارے اور تمہارے بچے کے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر تم بھی تو مرسم سے محبت کرتی ہو، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مرسم کے پاس لے چلتی ہوں۔ اور پھر میرب بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، مگر صبا میرب کو یہ نہیں بتاتی کہ حیا اور مرسم کا نکاح ہونے والا ہے۔ اگر صبا یہ پہلے ہی بتا دیتی تو میرب کبھی بھی مرسم کے پاس واپس نہ جاتی۔ اور فائنلی صبا میرب کو مرسم کے گھر لے جاتی ہے۔ ایک طرف حیا اور مرسم کا نکاح شروع ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری طرف میرب بھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب قاضی حیا سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو مرسم شاہ نواز سے نکاح قبول ہے، اور حیا قبول ہے کہنے ہی والی ہوتی ہے، حیا کے خواب پورے ہونے والے ہوتے ہیں کہ وہیں ہوتی ہے میرب کی انٹری۔ میرب مسن کو کاندھے سے لگائے ہوئے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ حیا اور مرسم کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ میرب نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مرسم حیا سے شادی کر لے گا۔ میرب حیران ہو جاتی ہے اور بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، اور پھر جب مرسم کی نظر پڑتی ہے میرب پر تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے یقین نہیں آتا کہ وہ جس میرب کو اتنا عرصہ ڈھونڈتا رہا، ہر جگہ تلاش کرتا رہا، آج وہ اس کے سامنے خود ہی آ گئی۔ اور حیا کا چہرہ تو دیکھنے والا ہوتا ہے، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میرب واپس آئے گی، اور آئی بھی تو عین نکاح کے وقت۔ میرب کو دیکھ کر حیا کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد میرب بغیر کچھ کہے اور سنے وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ جاتی ہے، مگر مرسم بھی دوڑ کر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے۔ میرب بیچاری شوق میں ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مرسم نے مجھے دھوکہ دے دیا، میرے ساتھ غضب ہو گیا۔ میرب اس وقت معصوم تو ایسے بن رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ خود بالکل بے قصور ہو۔ میرب کو وہ وقت یاد نہیں جب میرب روہیل کے ساتھ ملنے جاتی تھی۔ ایک دو بار تو مرسم نے خود میرب کو روہیل کے ساتھ پکڑا تھا، اس وقت تو میرب کو احساس نہیں ہوا کہ وہ مرسم کے ساتھ غلط کر رہی ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہے، مگر اب میرب کو بڑا دکھ لگ رہا ہے۔ پھر مرسم دلہن بنی حیا کو چھوڑ کر میرب کی طرف بڑھتا ہے اور میرب بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر مرسم میرب کے آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرب آئی تو ابھی ہو اور جا بھی رہی ہو۔ میرب میں چاہتا ہوں تم مجھے ڈانٹو، مجھے برا بھلا کہو، مگر یوں خاموش نہ رہو، مجھے تمہاری خاموشی تکلیف دے رہی ہے، کچھ تو کہو، میں تمہاری آواز سننے کو ترس چکا ہوں۔ تو میرب کہتی ہے کہ ابھی اندر میں نے جو کچھ بھی دیکھا اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہیں میری یاد آئی ہوگی۔ مرسم تم تو محبت کے کتنے دعوے کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے ہو اور زندگی بھر میرا انتظار کر سکتے ہو، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے، تم میرے انتظار میں زندگی گزار دو گے۔ وہ سب کیا تھا؟ تمہاری محبت اتنی کمزور تھی، وہ سب کیا تھا؟ تمہاری محبت اتنی کمزور تھی کہ 2 سال بھی میرا انتظار نہیں کر پائے اور حیا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے کچھ کہوں، بات کروں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے بات کروں، تم نے بات کرنے کو چھوڑا ہی کیا ہے؟ تو مرسم کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، اچھا تم یہ بتاؤ کہ یہ پیاری سی بچی کون ہے، بہت ہی کیوٹ ہے۔ تو میرا بتاتی ہے کہ یہ میسم ہے، ہماری بچی۔ تو یہ سن کر مرسم بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر میرا کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میسم کو تم سے دور رکھ کر اچھا نہیں کر رہی، اسی لیے میں تمہارے پاس لوٹی ہوں، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ تو مرسم کہتا ہے کہ میری بات تو سنو، میں حیا سے نکاح ایک مجبوری کے تحت کر رہا ہوں۔ حیا کے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا وہ انکار کر دیتی تھی، وہ کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے ماں بیگم بہت زیادہ پریشان تھی، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اور میرے دل میں ابھی بھی صرف تم ہو، اسی لیے میں حیا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوا، میرے دل میں ابھی بھی صرف تم ہو، حیا سے نکاح تو صرف ایک مجبوری ہے۔ مجھ سے میرب سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی، بہت مصیبتیں جھیلی ہیں۔ پھر میرب کہتی ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور حیا تو وہ عورت ہے جس نے ہمیشہ ہمیں علیحدہ کرنے کے لیے چالیں چلی، مجھے ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوششیں کی۔ حیا ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، حیا چاہتی تھی کہ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں تاکہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے خوشی رہے۔ تو مرسم کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حیا نے ہی تمہارے نام سے چٹھی بھیجی تھی
اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ تم مجھے اس کے ساتھ دیکھ لو اور ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ اور تاکہ وہ تمہاری جگہ لے سکے۔ اب میں حیا کو معاف نہیں کروں گا، اسے سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں معلوم ہے حیا ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے، تو تم اس کی چالوں کو کیوں کامیاب ہونے دے رہی ہو؟ مت جاؤ، میں تم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو صبا کہتی ہے کہ مرسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم مرسم کو معاف کر دو، حیا کو موقع مت دو، مرسم ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہے اور مرسم کو اس کی بچی سے دور مت کرو۔ تو آخر کار میرا مرسم کو معاف کر دیتی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل تیرے بن اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل تیرے بن کا سیکنڈ لاسٹ پرومو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اس پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ میرب کو رقیہ سمجھاتی ہے کہ اب تمہیں تمہارے شوہر کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم مسم کو اکیلے نہیں پال پاؤ گی۔ مسم کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم وقت پر اسے ہاسپٹل لے گئی۔ مجھے تو سوچ کر بھی ڈر لگ جاتا ہے کہ اگر تم وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ بس اب تم مرسم کے پاس واپس جا رہی ہو۔ پھر صبا کہتی ہے کہ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب تمہیں مرسم کے پاس واپس چلے جانا چاہیے، یہی تمہارے اور تمہارے بچے کے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر تم بھی تو مرسم سے محبت کرتی ہو، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مرسم کے پاس لے چلتی ہوں۔ اور پھر میرب بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، مگر صبا میرب کو یہ نہیں بتاتی کہ حیا اور مرسم کا نکاح ہونے والا ہے۔ اگر صبا یہ پہلے ہی بتا دیتی تو میرب کبھی بھی مرسم کے پاس واپس نہ جاتی۔ اور فائنلی صبا میرب کو مرسم کے گھر لے جاتی ہے۔ ایک طرف حیا اور مرسم کا نکاح شروع ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری طرف میرب بھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب قاضی حیا سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو مرسم شاہ نواز سے نکاح قبول ہے، اور حیا قبول ہے کہنے ہی والی ہوتی ہے، حیا کے خواب پورے ہونے والے ہوتے ہیں کہ وہیں ہوتی ہے میرب کی انٹری۔ میرب مسن کو کاندھے سے لگائے ہوئے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ حیا اور مرسم کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ میرب نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مرسم حیا سے شادی کر لے گا۔ میرب حیران ہو جاتی ہے اور بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، اور پھر جب مرسم کی نظر پڑتی ہے میرب پر تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے یقین نہیں آتا کہ وہ جس میرب کو اتنا عرصہ ڈھونڈتا رہا، ہر جگہ تلاش کرتا رہا، آج وہ اس کے سامنے خود ہی آ گئی۔ اور حیا کا چہرہ تو دیکھنے والا ہوتا ہے، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میرب واپس آئے گی، اور آئی بھی تو عین نکاح کے وقت۔ میرب کو دیکھ کر حیا کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد میرب بغیر کچھ کہے اور سنے وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ جاتی ہے، مگر مرسم بھی دوڑ کر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے۔ میرب بیچاری شوق میں ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مرسم نے مجھے دھوکہ دے دیا، میرے ساتھ غضب ہو گیا۔ میرب اس وقت معصوم تو ایسے بن رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ خود بالکل بے قصور ہو۔ میرب کو وہ وقت یاد نہیں جب میرب روہیل کے ساتھ ملنے جاتی تھی۔ ایک دو بار تو مرسم نے خود میرب کو روہیل کے ساتھ پکڑا تھا، اس وقت تو میرب کو احساس نہیں ہوا کہ وہ مرسم کے ساتھ غلط کر رہی ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہے، مگر اب میرب کو بڑا دکھ لگ رہا ہے۔ پھر مرسم دلہن بنی حیا کو چھوڑ کر میرب کی طرف بڑھتا ہے اور میرب بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر مرسم میرب کے آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرب آئی تو ابھی ہو اور جا بھی رہی ہو۔ میرب میں چاہتا ہوں تم مجھے ڈانٹو، مجھے برا بھلا کہو، مگر یوں خاموش نہ رہو، مجھے تمہاری خاموشی تکلیف دے رہی ہے، کچھ تو کہو، میں تمہاری آواز سننے کو ترس چکا ہوں۔ تو میرب کہتی ہے کہ ابھی اندر میں نے جو کچھ بھی دیکھا اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہیں میری یاد آئی ہوگی۔ مرسم تم تو محبت کے کتنے دعوے کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے ہو اور زندگی بھر میرا انتظار کر سکتے ہو، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے، تم میرے انتظار میں زندگی گزار دو گے۔ وہ سب کیا تھا؟ تمہاری محبت اتنی کمزور تھی، وہ سب کیا تھا؟ تمہاری محبت اتنی کمزور تھی کہ 2 سال بھی میرا انتظار نہیں کر پائے اور حیا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے کچھ کہوں، بات کروں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے بات کروں، تم نے بات کرنے کو چھوڑا ہی کیا ہے؟ تو مرسم کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، اچھا تم یہ بتاؤ کہ یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ بہت ہی کیوٹ ہے۔ تو میرا بتاتی ہے کہ یہ میسم ہے، ہماری بچی۔ تو یہ سن کر مرسم بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر میرا کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میسم کو تم سے دور رکھ کر اچھا نہیں کر رہی، اسی لیے میں تمہارے پاس لوٹی ہوں، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ تو مرسم کہتا ہے کہ میری بات تو سنو، میں حیا سے نکاح ایک مجبوری کے تحت کر رہا ہوں۔ حیا کے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا وہ انکار کر دیتی تھی، وہ کسی سے شادی کرنے
کے لیے تیار نہیں تھی، وہ صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے ماں بیگم بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی اور میرے دل میں ابھی بھی صرف تم ہو، اسی لیے میں حیا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوا۔ میرے دل میں ابھی بھی صرف تم ہو، حیا سے نکاح تو صرف ایک مجبوری ہے۔ مجھ سے میرب سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی، بہت مصیبتیں جھیلی ہیں۔ پھر میرب کہتی ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور حیا تو وہ عورت ہے جس نے ہمیشہ ہمیں علیحدہ کرنے کے لیے چالیں چلی، مجھے ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوششیں کی۔ حیا ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، حیا چاہتی تھی کہ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں تاکہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے خوشی خوشی رہے۔ تو مرسم کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حیا نے ہی تمہارے نام سے چٹھی بھیجی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ تم مجھے اس کے ساتھ دیکھ لو اور ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، اور تاکہ وہ تمہاری جگہ لے سکے۔ اب میں حیا کو معاف نہیں کروں گا، اسے سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں معلوم ہے حیا ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے، تو تم اس کی چالوں کو کیوں کامیاب ہونے دے رہی ہو؟ مت جاؤ، میں تم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو صبا کہتی ہے کہ مرسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم مرسم کو معاف کر دو، حیا کو موقع مت دو، مرسم ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہے اور مرسم کو اس کی بچی سے دور مت کرو۔ تو آخر کار میرا مرسم کو معاف کر دیتی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل تیرے بن اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، ڈرامہ سیریل تیرے بن کا سیکنڈ لاسٹ پرومو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اس پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ میرب کو رقیہ سمجھاتی ہے کہ اب تمہیں تمہارے شوہر کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم مسم کو اکیلے نہیں پال پاؤ گی۔ مسم کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتے رہ گیا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم وقت پر اسے ہاسپٹل لے گئی۔ مجھے تو سوچ کر بھی ڈر لگ جاتا ہے کہ اگر تم وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ بس اب تم مرسم کے پاس واپس جا رہی ہو۔ پھر صبا کہتی ہے کہ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب تمہیں مرسم کے پاس واپس چلے جانا چاہیے، یہی تمہارے اور تمہارے بچے کے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر تم بھی تو مرسم سے محبت کرتی ہو، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مرسم کے پاس لے چلتی ہوں۔ اور پھر میرب بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، مگر صبا میرب کو یہ نہیں بتاتی کہ حیا اور مرسم کا نکاح ہونے والا ہے۔ اگر صبا یہ پہلے ہی بتا دیتی تو میرب کبھی بھی مرسم کے پاس واپس نہ جاتی۔ اور فائنلی صبا میرب کو مرسم کے گھر لے جاتی ہے۔ ایک طرف حیا اور مرسم کا نکاح شروع ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری طرف میرب بھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب قاضی حیا سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو مرسم شاہ نواز سے نکاح قبول ہے، اور حیا قبول ہے کہنے ہی والی ہوتی ہے، حیا کے خواب پورے ہونے والے ہوتے ہیں کہ وہیں ہوتی ہے میرب کی انٹری۔ میرب مسن کو کاندھے سے لگائے ہوئے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ حیا اور مرسم کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ میرب نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مرسم حیا سے شادی کر لے گا۔ میرب حیران ہو جاتی ہے اور بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، اور پھر جب مرسم کی نظر پڑتی ہے میرب پر تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے یقین نہیں آتا کہ وہ جس میرب کو اتنا عرصہ ڈھونڈتا رہا، ہر جگہ تلاش کرتا رہا، آج وہ اس کے سامنے خود ہی آ گئی۔ اور حیا کا چہرہ تو دیکھنے والا ہوتا ہے، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میرب واپس آئے گی، اور آئی بھی تو عین نکاح کے وقت۔ میرب کو دیکھ کر حیا کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد میرب بغیر کچھ کہے اور سنے وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ جاتی ہے، مگر مرسم بھی دوڑ کر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے۔ میرب بیچاری شوق میں ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مرسم نے مجھے دھوکہ دے دیا، میرے ساتھ غضب ہو گیا۔ میرب اس وقت معصوم تو ایسے بن رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ خود بالکل بے قصور ہو۔ میرب کو وہ وقت یاد نہیں جب میرب روہیل کے ساتھ ملنے جاتی تھی۔ ایک دو بار تو مرسم نے خود میرب کو روہیل کے ساتھ پکڑا تھا، اس وقت تو میرب کو احساس نہیں ہوا کہ وہ مرسم کے ساتھ غلط کر رہی ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہے، مگر اب میرب کو بڑا دکھ لگ رہا ہے۔ پھر مرسم دلہن بنی حیا کو چھوڑ کر میرب کی طرف بڑھتا ہے اور میرب بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر مرسم میرب کے آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرب آئی تو ابھی ہو اور جا بھی رہی ہو۔ میرب میں چاہتا ہوں تو مجھے ڈانٹو، مجھے برا بھلا کہو، مگر یوں خاموش نہ رہو، مجھے تمہاری خاموشی تکلیف دے رہی ہے، کچھ تو کہو، میں تمہاری آواز سننے کو ترس چکا ہوں۔ تو میرب کہتی ہے کہ ابھی اندر میں نے جو کچھ بھی دیکھا اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہیں میری یاد آئی ہوگی۔ مرسم تم تو محبت کے کتنے دعوے کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے ہو اور زندگی بھر میرا انتظار کر سکتے ہو، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے، تم میرے انتظار میں زندگی گزار دو گے۔ وہ سب کیا تھا؟ تمہاری محبت اتنی کمزور تھی، وہ سب کیا تھا؟ تمہاری محبت اتنی کمزور تھی کہ 2 سال بھی میرا انتظار نہیں کر پائے اور حیا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے کچھ کہوں، بات کروں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے بات کروں، تم نے بات کرنے کو چھوڑا ہی کیا ہے؟ تو مرسم کہتا ہے کہ ایسی باتیں
मत करो। अच्छा तुम ये बताओ कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है? बहुत ही क्यूट है। तो मीरा बताती है कि ये मीसम है, हमारी बच्ची। तो ये सुनकर मुर्सिम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मीरा कहती है कि मैंने सोचा कि मीसम को तुमसे दूर रखकर अच्छा नहीं कर रही, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लौटी हूँ, मगर अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। तो मुर्सिम कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं हया से निकाह एक मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। हया के लिए जो भी रिश्ता आता था वो इनकार कर देती थी। वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती थी और इसी वजह से माँ बेगम बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई और मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो, इसीलिए मैं हया से शादी करने के लिए राजी हुआ। मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो। हया से निकाह तो सिर्फ एक मजबूरी है। मुझसे मीरब से कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत मुसीबतें झेली हैं। फिर मीरब कहती है कि कोई भी औरत अपने शौहर को किसी और के साथ निकाह करते हुए नहीं देख सकती, और हया तो वो औरत है जिसने हमेशा हमें अलहदा करने के लिए चालें चली, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिशें की। हया हमेशा मुझसे नफरत करती थी। हया चाहती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं ताकि वो तुम्हारे साथ निकाह करके खुशी खुशी रहे। तो मुर्सिम कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हया ने ही तुम्हारे नाम से चिट्ठी भेजी थी और मुझे अपने कमरे में बुलाया था ताकि तुम मुझे उसके साथ देख लो और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओ, और ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। अब मैं हया को माफ नहीं करूंगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें मालूम है हया हमें अलग करना चाहती है, तो तुम उसकी चालों को क्यों कामयाब होने दे रही हो? मत जाओ, मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो सबा कहती है कि मुर्सिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम मुर्सिम को माफ कर दो, हया को मौका मत दो। मुर्सिम अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है और मुर्सिम को उसकी बच्ची से दूर मत करो। तो आखिरकार मीरा मुर्सिम को माफ कर देती है। तो ड्रामा सीरियल तेरे बिन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन का सेकंड लास्ट प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो में दिखाया जाता है कि मीरब को रुकैया समझाती है कि अब तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम मिसम को अकेले नहीं पाल पाओगी। मिसम के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले गई। मुझे तो सोचकर भी डर लग जाता है कि अगर तुम वहां ना होती तो न जाने क्या हो जाता। बस अब तुम मुर्सिम के पास वापस जा रही हो। फिर सबा कहती है कि आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तुम्हें मुर्सिम के पास वापस चले जाना चाहिए, यही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के हक में बेहतर है। और फिर तुम भी तो मुर्सिम से मोहब्बत करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुर्सिम के पास ले चलती हूँ। और फिर मीरब भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, मगर सबा मीरब को ये नहीं बताती कि हया और मुर्सिम का निकाह होने वाला है। अगर सबा ये पहले ही बता देती तो मीरब कभी भी मुर्सिम के पास वापस न जाती। और फाइनली सबा मीरब को मुर्सिम के घर ले जाती है। एक तरफ हया और मुर्सिम का निकाह शुरू हो चुका होता है और दूसरी तरफ मीरब भी घर पहुंच जाती है। जब काजी हया से पूछता है कि क्या आपको मुर्सिम शाहनवाज से निकाह कबूल है, और हया कबूल है कहने ही वाली होती है, हया के ख्वाब पूरे होने वाले होते हैं कि वहीं होती है मीरब की एंट्री। मीरब मिशन को कांधे से लगाए हुए घर में एंटर होती है तो वो देखती है कि हया और मुर्सिम का निकाह हो रहा होता है। मीरब ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुर्सिम हया से शादी कर लेगा। मीरब हैरान हो जाती है और बस देखती ही रह जाती है। और फिर जब मुर्सिम की नजर पड़ती है मीरब पर तो वो फौरन खड़ा हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि वो जिस मीरब को इतना अरसा ढूंढता रहा, हर जगह तलाश करता रहा, आज वो उसके सामने खुद ही आ गई। और हया का चेहरा तो देखने वाला होता है, उसने सोचा ही नहीं था कि मीरब वापस आएगी, और आई भी तो ऐन निकाह के वक्त। मीरब को देखकर हया को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद मीरब बगैर कुछ कहे और सुने वहां से उल्टे पांव लौट जाती है, मगर मुर्सिम भी दौड़कर उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। मीरब बेचारी शौक में होती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मुर्सिम ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ गजब हो गया। उस वक्त मीरब उस वक्त मासूम तो ऐसे बन रही होती है जैसे कि वो खुद बिल्कुल बेकसूर हो। मीरब को वो वक्त याद नहीं जब मीरब रोहेल के साथ मिलने जाती थी। एक दो बार तो मुर्सिम ने खुद मीरब को रोहेल के साथ पकड़ा था। उस वक्त तो मीरब को एहसास नहीं हुआ कि वो मुर्सिम के साथ गलत कर रही है, उसकी इज्जत के साथ खेल रही है, मगर अब मीरब को बड़ा दुख लग रहा है। फिर मुर्सिम दुल्हन बनी हया को छोड़कर मीरब की तरफ बढ़ता है और मीरब भी वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर मुर्सिम मीरब के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मीरब आई तो अभी हो और जा भी रही हो। मीरब मैं चाहता हूँ तुम मुझे डांटो, मुझे बुरा भला कहो, मगर यूं खामोश ना रहो, मुझे तुम्हारी खामोशी तकलीफ दे रही है, कुछ तो कहो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस चुका हूँ। तो मीरब कहती है कि अभी अंदर मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि
तुम्हें मेरी याद आई होगी। मुर्सिम, तुम तो मोहब्बत के कितने दावे करते थे, मुझसे प्यार करते हो और जिंदगी भर मेरा इंतजार कर सकते हो, मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तुम मेरे इंतजार में जिंदगी गुजार दोगे। वो सब क्या था? तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी। वो सब क्या था? तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि 2 साल भी मेरा इंतजार नहीं कर पाए और हया से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, बात करूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे बात करूँ। तुमने बात करने को छोड़ा ही क्या है? तो मुर्सिम कहता है कि ऐसी बातें मत करो। अच्छा तुम ये बताओ कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है? बहुत ही क्यूट है। तो मीरा बताती है कि ये मीसम है, हमारी बच्ची। तो ये सुनकर मुर्सिम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मीरा कहती है कि मैंने सोचा कि मीसम को तुमसे दूर रखकर अच्छा नहीं कर रही, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लौटी हूँ, मगर अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। तो मुर्सिम कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं हया से निकाह एक मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। हया के लिए जो भी रिश्ता आता था वो इनकार कर देती थी। वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती थी। और इसी वजह से माँ बेगम बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई और मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो, इसीलिए मैं हया से शादी करने के लिए राजी हुआ। मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो। हया से निकाह तो सिर्फ एक मजबूरी है। मुझसे मीरब से कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत मुसीबतें झेली हैं। फिर मीरब कहती है कि कोई भी औरत अपने शौहर को किसी और के साथ निकाह करते हुए नहीं देख सकती, और हया तो वो औरत है जिसने हमेशा हमें अलग करने के लिए चालें चली, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिशें की। हया हमेशा मुझसे नफरत करती थी। हया चाहती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं ताकि वो तुम्हारे साथ निकाह करके खुशी खुशी रहे। तो मुर्सिम कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हया ने ही तुम्हारे नाम से चिट्ठी भेजी थी और मुझे अपने कमरे में बुलाया था ताकि तुम मुझे उसके साथ देख लो और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओ, और ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। अब मैं हया को माफ नहीं करूंगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें मालूम है हया हमें अलग करना चाहती है, तो तुम उसकी चालों को क्यों कामयाब होने दे रही हो? मत जाओ, मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो सबा कहती है कि मुर्सिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम मुर्सिम को माफ कर दो, हया को मौका मत दो। मुर्सिम अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है और मुर्सिम को उसकी बच्ची से दूर मत करो। तो आखिरकार मेरा मुर्सिम को माफ कर देती है। तो ड्रामा सीरियल तेरे बिन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन का सेकंड लास्ट प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो में दिखाया जाता है कि मीरब को रुकैया समझाती है कि अब तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम मिसम को अकेले नहीं पाल पाओगी। मिसम के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले गई। मुझे तो सोचकर भी डर लग जाता है कि अगर तुम वहां ना होती तो न जाने क्या हो जाता। बस अब तुम मुर्सिम के पास वापस जा रही हो। फिर सबा कहती है कि आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तुम्हें मुर्सिम के पास वापस चले जाना चाहिए, यही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के हक में बेहतर है। और फिर तुम भी तो मुर्सिम से मोहब्बत करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुर्सिम के पास ले चलती हूँ। और फिर मीरा भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, मगर सबा मीरब को ये नहीं बताती कि हया और मुर्सिम का निकाह होने वाला है। अगर सबा ये पहले ही बता देती तो मीरब कभी भी मुर्सिम के पास वापस न जाती। और फाइनली सबा मीरब को मुर्सिम के घर ले जाती है। एक तरफ हया और मुर्सिम का निकाह शुरू हो चुका होता है और दूसरी तरफ मीरब भी घर पहुंच जाती है। जब काजी हया से पूछता है कि क्या आपको मुर्सिम शाह नवाज से निकाह कबूल है, और हया कबूल है कहने ही वाली होती है, हया के ख्वाब पूरे होने वाले होते हैं कि वहीं होती है मीरब की एंट्री। मीरब मिशन को कांधे से लगाए हुए घर में एंटर होती है तो वो देखती है कि हया और मुर्सिम का निकाह हो रहा होता है। मीरब ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुर्सिम हया से शादी कर लेगा। मीरब हैरान हो जाती है और बस देखती ही रह जाती है। और फिर जब मुर्सिम की नजर पड़ती है मीरब पर तो वो फौरन खड़ा हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि वो जिस मीरब को इतना अरसा ढूंढता रहा, हर जगह तलाश करता रहा, आज वो उसके सामने खुद ही आ गई। और हया का चेहरा तो देखने वाला होता है, उसने सोचा ही नहीं था कि मीरब वापस आएगी, और आई भी तो ऐन निकाह के वक्त। मीरब को देखकर हया को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद मीरब बगैर कुछ कहे और सुने वहां से उल्टे पांव लौट जाती है, मगर मुर्सिम भी दौड़कर उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। मीरब बेचारी शौक में होती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मुर्सिम ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ गजब हो गया। उस वक्त मीरब उस वक्त मासूम तो ऐसे बन रही होती है जैसे कि वो खुद बिल्कुल बेकसूर हो। मीरब को वो वक्त याद नहीं जब मीरब रोहेल के साथ मिलने जाती थी। 1-2 बार तो मुर्सिम ने खुद मीरब को रोहेल के साथ पकड़ा था। उस वक्त तो मीरब को एहसास नहीं हुआ कि वो मुर्सिम के साथ गलत कर रही है, उसकी इज्जत के साथ खेल रही है,
मगर अब मीरब को बड़ा दुख लग रहा है। फिर मुर्सिम दुल्हन बनी हया को छोड़कर मीरब की तरफ बढ़ता है और मीरब भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर मुर्सिम मीरब के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मीरब आई तो अभी हो और जा भी रही हो। मीरब मैं चाहता हूँ तुम मुझे डांटो, मुझे बुरा भला कहो, मगर यूं खामोश ना रहो। मुझे तुम्हारी खामोशी तकलीफ दे रही है, कुछ तो कहो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस चुका हूँ। तो मीरब कहती है कि अभी अंदर मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें मेरी याद आई होगी। मुर्सिम तुम तो मोहब्बत के कितने दावे करते थे, मुझसे प्यार करते हो और जिंदगी भर मेरा इंतजार कर सकते हो, मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तुम मेरे इंतजार में जिंदगी गुजार दोगे। वो सब क्या था, तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी, वो सब क्या था, तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि 2 साल भी मेरा इंतजार नहीं कर पाए और हया से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, बात करूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे बात करूँ, तुमने बात करने को छोड़ा ही क्या है। तो मुर्सिम कहता है कि ऐसी बातें मत करो, अच्छा तुम ये बताओ कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है, बहुत ही क्यूट है। तो मीरा बताती है कि ये मीसम है, हमारी बच्ची। तो ये सुनकर मुर्सिम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मीरा कहती है कि मैंने सोचा कि मीसम को तुमसे दूर रखकर अच्छा नहीं कर रही, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लौटी हूँ, मगर अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। तो मुर्सिम कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं हया से निकाह एक मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। हया के लिए जो भी रिश्ता आता था वो इनकार कर देती थी, वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती थी। और इसी वजह से माँ बेगम बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई और मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो, इसीलिए मैं हया से शादी करने के लिए राजी हुआ। मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो, हया से निकाह तो सिर्फ एक मजबूरी है। मुझसे मीरब से कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत मुसीबतें झेली हैं। फिर मीरब कहती है कि कोई भी औरत अपने शौहर को किसी और के साथ निकाह करते हुए नहीं देख सकती, और हया तो वो औरत है जिसने हमेशा हमें अलग करने के लिए चालें चली, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिशें की। हया हमेशा मुझसे नफरत करती थी, हया चाहती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं ताकि वो तुम्हारे साथ निकाह करके खुशी खुशी रहे। तो मुर्सिम कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हया ने ही तुम्हारे नाम से चिट्ठी भेजी थी और मुझे अपने कमरे में बुलाया था ताकि तुम मुझे उसके साथ देख लो और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओ, और ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। अब मैं हया को माफ नहीं करूंगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें मालूम है हया हमें अलग करना चाहती है, तो तुम उसकी चालों को क्यों कामयाब होने दे रही हो। मत जाओ, मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो सबा कहती है कि मुर्सिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम मुर्सिम को माफ कर दो, हया को मौका मत दो। मुर्सिम अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है और मुर्सिम को उसकी बच्ची से दूर मत करो। तो आखिरकार मेरा मुर्सिम को माफ कर देती है। तो ड्रामा सीरियल तेरे बिन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन का सेकंड लास्ट प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो में दिखाया जाता है कि मीरब को रुकैया समझाती है कि अब तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम मिसम को अकेले नहीं पाल पाओगी। मिसम के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया, ये तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले गई। मुझे तो सोचकर भी डर लग जाता है कि अगर तुम वहां ना होती तो न जाने क्या हो जाता। बस अब तुम मुर्सिम के पास वापस जा रही हो। फिर सबा कहती है कि आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तुम्हें मुर्सिम के पास वापस चले जाना चाहिए, यही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के हक में बेहतर है। और फिर तुम भी तो मुर्सिम से मोहब्बत करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुर्सिम के पास ले चलती हूँ। और फिर मीरा भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, मगर सबा मीरब को ये नहीं बताती कि हया और मुर्सिम का निकाह होने वाला है। अगर सबा ये पहले ही बता देती तो मीरब कभी भी मुर्सिम के पास वापस न जाती। और फाइनली सबा मीरब को मुर्सिम के घर ले जाती है। एक तरफ हया और मुर्सिम का निकाह शुरू हो चुका होता है और दूसरी तरफ मीरब भी घर पहुंच जाती है। जब काजी हया से पूछता है कि क्या आपको मुर्सिम शाह नवाज से निकाह कबूल है, और हया कबूल है कहने ही वाली होती है, हया के ख्वाब पूरे होने वाले होते हैं कि वहीं होती है मीरब की एंट्री। मीरब मिशन को कांधे से लगाए हुए घर में एंटर होती है तो वो देखती है कि हया और मुर्सिम का निकाह हो रहा होता है। मीरब ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुर्सिम हया से शादी कर लेगा। मीरब हैरान हो जाती है और बस देखती ही रह जाती है। और फिर जब मुर्सिम की नजर पड़ती है मीरब पर तो वो फौरन खड़ा हो जाता है
और उसे यकीन नहीं आता कि वो जिस मीरब को इतना अरसा ढूंढता रहा, हर जगह तलाश करता रहा, आज वो उसके सामने खुद ही आ गई। और हया का चेहरा तो देखने वाला होता है। उसने सोचा ही नहीं था कि मीरब वापस आएगी, और आई भी तो ऐन निकाह के वक्त। मीरब को देखकर हया को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद मीरब बगैर कुछ कहे और सुने वहाँ से उल्टे पांव लौट जाती है, मगर मुर्सिम भी दौड़कर उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। मीरब बेचारी शौक में होती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मुर्सिम ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ गजब हो गया। उस वक्त मीरब उस वक्त मासूम तो ऐसे बन रही होती है जैसे कि वो खुद बिल्कुल बेकसूर हो। मीरब को वो वक्त याद नहीं जब मीरब रोहेल के साथ मिलने जाती थी। एक दो बार तो मुर्सिम ने खुद मीरब को रोहेल के साथ पकड़ा था। उस वक्त तो मीरब को एहसास नहीं हुआ कि वो मुर्सिम के साथ गलत कर रही है, उसकी इज्जत के साथ खेल रही है, मगर अब मीरब को बड़ा दुख लग रहा है। फिर मुर्सिम दुल्हन बनी हया को छोड़कर मीरब की तरफ बढ़ता है और मीरब भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर मुर्सिम मीरब के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मीरब आई तो अभी हो और जा भी रही हो। मीरब मैं चाहता हूँ तुम मुझे डांटो, मुझे बुरा भला कहो, मगर यूं खामोश ना रहो। मुझे तुम्हारी खामोशी तकलीफ दे रही है, कुछ तो कहो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस चुका हूँ। तो मीरब कहती है कि अभी अंदर मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें मेरी याद आई होगी। मुर्सिम तुम तो मोहब्बत के कितने दावे करते थे, मुझसे प्यार करते हो और जिंदगी भर मेरा इंतजार कर सकते हो, मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तुम मेरे इंतजार में जिंदगी गुजार दोगे। वो सब क्या था, तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी, वो सब क्या था, तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि 2 साल भी मेरा इंतजार नहीं कर पाए और हया से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, बात करूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे बात करूँ, तुमने बात करने को छोड़ा ही क्या है। तो मुर्सिम कहता है कि ऐसी बातें मत करो, अच्छा तुम ये बताओ कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है, बहुत ही क्यूट है। तो मीरा बताती है कि ये मीसम है, हमारी बच्ची। तो ये सुनकर मुर्सिम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मीरा कहती है कि मैंने सोचा कि मीसम को तुमसे दूर रखकर अच्छा नहीं कर रही, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लौटी हूँ, मगर अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। तो मुर्सिम कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं हया से निकाह एक मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। हया के लिए जो भी रिश्ता आता था वो इनकार कर देती थी, वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती थी। और इसी वजह से माँ बेगम बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई और मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो, इसीलिए मैं हया से शादी करने के लिए राजी हुआ। मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो, हया से निकाह तो सिर्फ एक मजबूरी है। मुझसे मीरब से कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत मुसीबतें झेली हैं। फिर मीरब कहती है कि कोई भी औरत अपने शौहर को किसी और के साथ निकाह करते हुए नहीं देख सकती, और हया तो वो औरत है जिसने हमेशा हमें अलग करने के लिए चालें चली, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिशें की। हया हमेशा मुझसे नफरत करती थी, हया चाहती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं ताकि वो तुम्हारे साथ निकाह करके खुशी खुशी रहे। तो मुर्सिम कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हया ने ही तुम्हारे नाम से चिट्ठी भेजी थी और मुझे अपने कमरे में बुलाया था ताकि तुम मुझे उसके साथ देख लो और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओ, और ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। अब मैं हया को माफ नहीं करूंगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें मालूम है हया हमें अलग करना चाहती है, तो तुम उसकी चालों को क्यों कामयाब होने दे रही हो। मत जाओ, मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो सबा कहती है कि मुर्सिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम मुर्सिम को माफ कर दो, हया को मौका मत दो। मुर्सिम अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है और मुर्सिम को उसकी बच्ची से दूर मत करो। तो आखिरकार मेरा मुर्सिम को माफ कर देती है। तो ड्रामा सीरियल तेरे बिन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन का सेकंड लास्ट प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो में दिखाया जाता है कि मीरब को रुकैया समझाती है कि अब तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम मिसम को अकेले नहीं पाल पाओगी। मिसम के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया, ये तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले गई। मुझे तो सोचकर भी डर लग जाता है कि अगर तुम वहां ना होती तो न जाने क्या हो जाता। बस अब तुम मुर्सिम के पास वापस जा रही हो। फिर सबा कहती है कि आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तुम्हें मुर्सिम के पास वापस चले जाना चाहिए, यही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के हक में बेहतर है। और फिर तुम भी तो मुर्सिम से मोहब्बत करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुर्सिम के पास ले चलती हूँ। और फिर मीरा भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, मगर सबा मीरब को ये नहीं बताती कि हया और मुर्सिम का निकाह होने वाला है। अगर सबा ये पहले ही बता देती तो मीरब कभी भी मुर्सिम के पास वापस ना
जाती और फाइनली सबा मीरब को मुर्सिम के घर ले जाती है। एक तरफ हया और मुर्सिम का निकाह शुरू हो चुका होता है और दूसरी तरफ मीरब भी घर पहुंच जाती है। जब काजी हया से पूछता है कि क्या आपको मुर्सिम शाहनवाज से निकाह कबूल है और हया कबूल है कहने ही वाली होती है, हया के ख्वाब पूरे होने वाले होते हैं कि वहीं होती है मीरब की एंट्री। मीरब मिशन को कांधे से लगाए हुए घर में एंटर होती है तो वो देखती है कि हया और मुर्सिम का निकाह हो रहा होता है। मीरब ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुर्सिम हया से शादी कर लेगा। मीरब हैरान हो जाती है और बस देखती ही रह जाती है और फिर जब मुर्सिम की नजर पड़ती है मीरब पर तो वो फौरन खड़ा हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि वो जिस मीरब को इतना अरसा ढूंढता रहा, हर जगह तलाश करता रहा, आज वो उसके सामने खुद ही आ गई। और हया का चेहरा तो देखने वाला होता है। उसने सोचा ही नहीं था कि मीरब वापस आएगी और आई भी तो ऐन निकाह के वक्त। मीरब को देखकर हया को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद मीरब बगैर कुछ कहे और सुने वहां से उल्टे पांव लौट जाती है, मगर मुर्सिम भी दौड़कर उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। मीरब बेचारी शौक में होती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मुर्सिम ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ गजब हो गया। उस वक्त मीरब उस वक्त मासूम तो ऐसे बन रही होती है जैसे कि वो खुद बिल्कुल बेकसूर हो। मीरब को वो वक्त याद नहीं जब मीरब रोहेल के साथ मिलने जाती थी। एक दो बार तो मुर्सिम ने खुद मीरब को रोहेल के साथ पकड़ा था। उस वक्त तो मीरब को एहसास नहीं हुआ कि वो मुर्सिम के साथ गलत कर रही है, उसकी इज्जत के साथ खेल रही है, मगर अब मीरब को बड़ा दुख लग रहा है। फिर मुर्सिम दुल्हन बनी हया को छोड़कर मीरब की तरफ बढ़ता है और मीरब भी वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर मुर्सिम मीरब के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मीरब आई तो अभी हो और जा भी रही हो। मीरब मैं चाहता हूँ तुम मुझे डांटो, मुझे बुरा भला कहो, मगर यूं खामोश ना रहो। मुझे तुम्हारी खामोशी तकलीफ दे रही है, कुछ तो कहो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस चुका हूँ। तो मीरब कहती है कि अभी अंदर मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें मेरी याद आई होगी। मुर्सिम तुम तो मोहब्बत के कितने दावे करते थे, मुझसे प्यार करते हो और जिंदगी भर मेरा इंतजार कर सकते हो, मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तुम मेरे इंतजार में जिंदगी गुजार दोगे। वो सब क्या था, तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी, वो सब क्या था, तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि 2 साल भी मेरा इंतजार नहीं कर पाए और हया से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, बात करूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे बात करूँ, तुमने बात करने को छोड़ा ही क्या है। तो मुर्सिम कहता है कि ऐसी बातें मत करो, अच्छा तुम ये बताओ कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है, बहुत ही क्यूट है। तो मीरब बताती है कि ये मीसम है, हमारी बच्ची। तो ये सुनकर मुर्सिम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मीरब कहती है कि मैंने सोचा कि मीसम को तुमसे दूर रखकर अच्छा नहीं कर रही, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लौटी हूँ, मगर अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। तो मुर्सिम कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं हया से निकाह एक मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। हया के लिए जो भी रिश्ता आता था वो इनकार कर देती थी, वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती थी। और इसी वजह से माँ बेगम बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई और मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो, इसीलिए मैं हया से शादी करने के लिए राजी हुआ। मेरे दिल में अभी भी सिर्फ तुम हो, हया से निकाह तो सिर्फ एक मजबूरी है। मुझसे मीरब से कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत मुसीबतें झेली हैं। फिर मीरब कहती है कि कोई भी औरत अपने शौहर को किसी और के साथ निकाह करते हुए नहीं देख सकती, और हया तो वो औरत है जिसने हमेशा हमें अलग करने के लिए चालें चली, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिशें की। हया हमेशा मुझसे नफरत करती थी, हया चाहती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं ताकि वो तुम्हारे साथ निकाह करके खुशी खुशी रहे। तो मुर्सिम कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हया ने ही तुम्हारे नाम से चिट्ठी भेजी थी और मुझे अपने कमरे में बुलाया था ताकि तुम मुझे उसके साथ देख लो और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओ, और ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। अब मैं हया को माफ नहीं करूंगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें मालूम है हया हमें अलग करना चाहती है, तो तुम उसकी चालों को क्यों कामयाब होने दे रही हो। मत जाओ, मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो सबा कहती है कि मुर्सिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम मुर्सिम को माफ कर दो, हया को मौका मत दो। मुर्सिम अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है और मुर्सिम को उसकी बच्ची से दूर मत करो। तो आखिरकार मेरा मुर्सिम को माफ कर देती है। तो ड्रामा सीरियल तेरे बिन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन का सेकंड लास्ट प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो में दिखाया जाता है कि मीरब को रुकैया समझाती है कि अब तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम मिसम को अकेले नहीं पाल पाओगी। मिसम के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले गई। मुझे तो सोचकर भी डर लग जाता है कि अगर तुम वहां ना होती तो न जाने क्या हो जाता। बस अब तुम मुर्सिम के पास वापस जा रही हो
फिर सबा कहती है कि आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तुम्हें मुर्शम के पास वापस चले जाना चाहिए, यही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के हक में बेहतर है। और फिर तुम भी तो मुर्शम से मोहब्बत करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुर्शम के पास ले चलती हूँ। और फिर मीरब भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, मगर सबा मीरब को ये नहीं बताती कि हया और मुर्शम का निकाह होने वाला है। अगर सबा ये पहले ही बता देती तो मीरब कभी भी मुर्शम के पास वापस ना जाती। और फाइनली सबा मीरब को मुर्शम के घर ले जाती है। एक तरफ हया और मुर्शम का निकाह शुरू हो चुका होता है और दूसरी तरफ मीरब भी घर पहुंच जाती है। जब काजी हया से पूछता है कि क्या आपको मुर्शम शाह नवाज से निकाह कबूल है, और हया कबूल है कहने ही वाली होती है, हया के ख्वाब पूरे होने वाले होते हैं कि वहीं होती है मीरब की एंट्री। मीरब मिशन को कांधे से लगाए हुए घर में एंटर होती है तो वो देखती है कि हया और मुर्शम का निकाह हो रहा होता है। मीरब ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुर्शम हया से शादी कर लेगा। मीरब हैरान हो जाती है और बस देखती रह जाती है। और फिर जब मुर्शम की नजर पड़ती है मीरब पर तो वो फौरन खड़ा हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि वो जिस मीरब को इतना अरसा ढूंढता रहा, हर जगह तलाश करता रहा, आज वो उसके सामने खुद ही आ गई। और हया का चेहरा तो देखने वाला होता है, उसने सोचा ही नहीं था कि मीरब वापस आएगी, और आई भी तो ऐन निकाह के बाद। मीरब को देखकर हया को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद मीरब बगैर कुछ कहे और सुने वहां से उल्टे पांव लौट जाती है, मगर मुर्शम भी दौड़कर उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।